गुड इवनिंग टू ऑल। आप लोग देख लीजिए, वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। रोल नंबर्स दिए हैं जिनको कॉल करी गई है, जिनको बुलाया गया है। और अगर आपका रोल नंबर इसमें है तो आप जो है अपनी काउंसलिंग करा लीजिए, डीवी करा लीजिए। जैसे देखिए, ये इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक नोटिस है जिसमें नीचे रोल नंबर लिखे हुए हैं। टॉपिक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर प्रिपेयरिंग द पैनल टू कंसीडर फॉर टीचिंग पोस्ट थ्रू ESSC 2023। Next, notified for filling up of teaching and non-teaching posts through ESSC 2023. As per the laid down procedure, candidates were shortlisted and offered appointment cum posting orders against the non-joined absent cases. It is approved to prepare a panel of candidates for consideration to post under waitlist as per the category of not joined or absent candidates subject to maximum of 10%. As per the notification of ESSC 2023 dated 28/6/2023 and 18/7/2023, these candidates are called in the ratio of 1:1.5 वेरिफिकेशन, मतलब 1 से 1.5 गुना लोग बुलाए गए हैं जितनी भी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट थ्रू वेट लिस्ट विल बी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विद रेफरेंस टू नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड ड्यू टू नॉन ज्वाइंट एब्सेंट केसेस and subject to fulfillment of all conditions for appointment to the post. This document verification notice issued is a provisional to prepare the panel for operation and subject to the condition that the candidates fulfill all the eligibility criteria stipulated for various posts in the detailed notification published by NEST. If any of the particulars furnished by the candidates in the application is found incomplete or wrong, or candidates are found not to fulfill any of the laid down criteria for the post by the cutoff date as stated in the notification, or if found to have willfully suppressed any material information relevant to the consideration of the candidature, the same will be summarily rejected without prejudice to any other action that may be taken in consequence thereof by the NEST. In view of these, all candidates must ensure that they possess the requisite qualifications and meet all other eligibility criteria before attending the document verification. मतलब वही कहा इन्होंने कि डीवी के लिए जिनको बुलाया जा रहा है वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हों जो भी नेस्ट ने अपने एडवर्टीज़मेंट में नोटिफिकेशन में निकाला था। अगर कहीं पर भी ऐसा पाया जाता है कि आप की जो क्वालिफ़िकेशन है, जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफ़िल नहीं होती है, तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये तो एक लैंग्वेज है जो लिखी ही जाती है। खैर, द शेड्यूल ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. It is stated that document verification process is only to draw the panel of eligible candidates. All the candidates whose document verification will be carried out may not be issued with appointment cum posting orders. ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक तो 1.5 गुना लोगों को बुलाए हैं। 1.5 गुना में से मान लो 50 तो चले ही जाएंगे। अगर 100 पोस्ट हैं, 100 के लिए 150 लोगों को बुलाया गया है तो 100 को ही ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, 50 को नहीं दिया जाएगा। वो इसलिए मेरिट के बेस पे। Number of offers issued will be as per the vacancy and as notified by NEST in ESSC 2023 notification. The shortlisted candidates are required to report at 9:30 a.m. as per the schedule at the National Tribal Research Institute, NTRI, India Institute of Public Administration, Campus IP State, Ring Road, ITO, New Delhi 110002, nearest metro station ITO, Violet Line, exit from gate number 5. तो ये एड्रेस है आप लोगों का। 9:30 बजे पहुँचना है। पीजीटी बायो में अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल 36 लोगों को बुलाया गया है 26 तारीख को। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 26 लोगों को बुलाया गया है इसमें कंप्यूटर साइंस में। फिर इसके बाद बात करें, आप लोग देख लीजिए पीजीटी मैथ्स 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 36 पीजीटी मैथ्स में बुलाए गए हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो 1 2 3 4 5 26 27 लोग इसमें बुलाए गए हैं पीजीटी केमिस्ट्री में। पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करें तो 1 2 3 4 और 25 लोग बुलाए गए हैं इसमें पीजीटी इकोनॉमिक्स में।
पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 36 2 38 लोग बुलाए गए हैं पीजीटी इंग्लिश में। और ऊपर शेड्यूल भी दिया है किस तारीख से, ऊपर डेट भी पड़ी हुई है। पीजीटी हिंदी की बात करें 1 2 3 4 5 31 लोग बुलाए गए हैं पीजीटी हिंदी में। फिजिक्स की बात करें 1 2 3 4 25 लोग बुलाए गए हैं इसमें। पीजीटी मराठी में 2 लोग बुलाए गए हैं। संस्कृत में अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 11 लोग बुलाए गए हैं। तेलुगु में 2 लोग बुलाए गए हैं। पीजीटी हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 24 25 26 28 29 लोग बुलाए गए हैं। टीजीटी इंग्लिश में देख लीजिए 2 तारीख को है इनका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 45 3 48 51 लोग बुलाए गए हैं टीजीटी इंग्लिश में। टीजीटी इंग्लिश में 51 लोगों का 2 तारीख को है और फिर कुछ हैं जिनका 3 को भी है, नीचे भी है टीजीटी इंग्लिश, आप लोग देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अच्छे खासे लोग बुलाए गए हैं इसमें टीजीटी इंग्लिश में। टीजीटी हिंदी का 6 को है, तो ये देख लीजिएगा। रोल नंबर 7 को भी है इसमें अगर आपका रोल नंबर है। टीजीटी मराठी, टीजीटी साइंस का 8 और 9 2 दिन है। टीजीटी एसएसटी का 10 को है और 13 को है। फिर टीजीटी संस्कृत 15 को है। टीजीटी पीईटी फीमेल 15 को है, मेल 16 को है। टीजीटी आर्ट 16 को, टीजीटी म्यूजिक 17 को, टीजीटी उड़िया 17 को, टीजीटी उर्दू 17 को। नोट में लिखा रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट अगेंस्ट एवरी पोस्ट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर नॉट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। मतलब इसमें मेरिट ना समझा जाए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने दिया है। तो ये है आप लोगों की वेटिंग लिस्ट। इसमें जिनका भी रोल नंबर हो वो लोग देख लें और जो भी डेट ऊपर पड़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग 9:30 बजे आप पहुंच जाइए नेस्ट के ऑफिस में। और बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जो कहीं न कहीं वर्किंग है, यानी किसी स्टेट में कार्यरत हैं, जो ऑलरेडी जॉब में हैं, हालांकि सही एडवाइस देना मेरा काम है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी नौकरी छोड़ करके ईएमआरएस में मत जाइएगा। भले ही आपको 20-25 हज़ार रुपये कम मिल रहे हों जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, तो जहाँ आप कर रहे होंगे वहाँ सुकून में होंगे। यहाँ पर 24 घंटे की नौकरी है, ना संडे छुट्टी है, ना मंडे छुट्टी है, ना आपको जो भी हॉलीडेज़ होती हैं वो मिलेंगी। आपकी ब्रेक उनमें भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि 5-5 दिन की हैं। केवल आपको समर वेकेशन जो भी मिलेंगी उनमें उनको अवेल कर सकते हैं और बड़ा काम है। तो इसको देखते हुए मैं यही रिकमेंड करूँगा जो जॉब में है, मतलब जो बेरोज़गार हैं, यानी कहने का मतलब जिनकी जॉब अभी लगी नहीं, पहली है, तो वो तो करेंगे ही करेंगे, उनका तो करना भी बनता है क्योंकि भाई नौकरी पहली मिल रही है, सरकारी नौकरी, तो उनको करना है। लेकिन जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं, जैसे कई लोग मैंने देखा था जो बिहार से जा रहे हैं, कई गए भी थे, और या कहीं अदर वो जॉब कर रहे थे जहाँ पर उनको थोड़ा लग रहा होगा नहीं सेंट्रल में हम जा रहे हैं, तो ये सेंट्रल वैसा सेंट्रल नहीं है जैसा आप समझते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर जाने का मतलब है आप कैद रहेंगे वहीं पर, और जिस हिसाब से सैलरी जो दे रहे हैं वो आपके जॉब को देखते हुए कम है, क्योंकि 24 घंटे की नौकरी करा रहे हैं, वो रात में भी आपसे ड्यूटी करा रहे हैं, महिलाओं से भी करा रहे हैं रात में ड्यूटी। तो मैं यही कहूँगा कि बेटर है अगर आप पहले से कहीं हैं तो जहाँ है वहीं सुकून में है। और बाकी जो लोग ज्वाइन किए हैं उनसे फ़ीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि पहले जब मैं कहता था ये बात तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए थे तो उनको बुरा लगता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अब आपके सामने वो लोग हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कैसा वर्किंग कल्चर है। तो यही मुझे बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।